Hi everyone, a very warm welcome to our YouTube channel. Let's get started with the daily analysis of Nifty, Bank Nifty and Fin Nifty. Starting with Nifty on the daily time frame, if you see it is basically a very small doji. In doji, what we simply do, we will wait for either side to be taken out and then we will take the next move. So in daily, what happened today? Actually, Nifty tried to make a fresh ATH, which it did also on an intraday basis. However, it failed to close above this particular fresh high. And if you see, just like that day on last Monday, how the closing was, similarly the closing was near about 23,259. So now coming to 15 minutes, these are our supports and resistance. This is the first support, which is around 23,100, 23,140 zones. And let's say if this gets taken out, then we can see levels of this. Now remember, this level looks to be a bit strong kind of a level in case of any reversal wherein one wants to buy on dips, or if you are an option seller and you are looking for selling options, look at these zones. If there is a bullish reversal, you can sell puts at this juncture. However, for tomorrow, what we can do, if this level is taken out, which is around 23,100 zones, if this level is taken out, one can go short for an immediate target of this one, 22,800 levels. This is for scalping. Nifty has done a very stretchy kind of a move from 22,200 to 23,400 all the way without giving any meaningful dips. Of course, this was the budget day volatility which got recovered, V-shaped recovery if you see, and we are nearly again back to last Monday highs again after the volatility during the election results. And now we might come here, and then if there is some sort of an bullish reversal here, then we can easily make some fresh highs in case of Nifty. So that's it for Nifty. It's a simple case. Unless this level is taken out, which is 23,400, 23,430, we are not going to go aggressively long. Till then, strangles might play out for option sellers. However, the problem is the spikes which needs to be handled. But tomorrow looks like it could be, the range could be somewhere from 23,300 on the upside and somewhere around 22,800 zones maximum. Else, this is also a small support. If there is some sort of a reversal for an intraday, you can check this one also. But if this level gets taken out, I am expecting market to at least touch 22,800 once. Let's go to Bank Nifty. So Bank Nifty mein it's basically again a doji, classic doji. It's a wider range doji. The range is wider because of the initial volatility which we have seen in the last week. Now let's go to the 15 minutes. Now what we can see in the first candle itself, Bank Nifty started to go massively up. And it, in fact, at one point of time, it did cross 50,000 as well on intraday basis. However, the very next candle came down crashingly down, and it never, it again, in the second time, it again tried to attempt an up move and tried to sustain above 50k. However, that attempt got failed. So we didn't get any closing of 50,000. So Bank Nifty did struggle hard to stay above 50k. So far, we are not getting that closing of above 50k, and this pole and flag which I had drawn is now distorted because of this kind of a price action. So this pole and flag pattern is invalid because यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर काफी वॉलेटिलिटी हुई है और इसकी वजह से ये पैटर्न एक्टिवेट ही नहीं हो पाया. इसीलिए मैंने डाला भी नहीं, बिकॉज ये पहले ही कैंडल में इतना भाग चुका था. मैंने कल ही वहां पर लिखा था कुछ 940 पॉइंट्स का अपमूव आने के चांसेस है, और पहले ही कैंडल में वो कुछ 450 या 500 पॉइंट तक जा चुका था. तो फिर ऐसे टाइम पे उसको चेस करके कोई मतलब नहीं है. तो अभी दिस इज द इमीडिएट सपोर्ट, बट आई एम गोइंग टू टेक इट ऑफ एंड आई टेल यू द रीजन. क्योंकि ये देखिए यहाँ पर इसने ऑलरेडी टेस्ट किया है, ये क्लोजिंग भी ऑलमोस्ट टेस्ट किया, तो 3 बार तो ऑलरेडी टेस्ट किया है. तो अब ये सपोर्ट मेरे लिए वीक हो गया, तो आई एम टेकिंग दिस ऑफ. तो नाउ द इमीडिएट सपोर्ट और द S1 वुड बी लाइक 49,300 हमारे लिए, एंड दीज आर द रेस्ट टू सपोर्ट्स. इफ मार्केट कम्स हियर और यहाँ पर कोई बुलिश रिवर्सल दिखता है तो मैं लॉन्ग जाऊंगी इस जोन पे. ये सिंपल है. ये देखिए, ये अब तक रेजिस्टेंस थी, यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, ये यहाँ पर सपोर्ट लिया. अगर ये फ्लैट ओपन होके ब्रेक कर देती है तो आप एक छोटा सा शॉर्ट कर सकते हो फॉर दिस टारगेट्स. हाउएवर, ये तो वो लोगों के लिए है जो लोग स्कैल्प करना चाहते हैं ये ऑप्शन बाइंग में, ठीक है. बट इफ यू आस्क मी एज एन ऑप्शन सेलर, इट वुड बी बेटर टू कीप अ व्यू ऑफ स्ट्रैंगल्स जब तक ये लेवल हाई नहीं निकलता है या जब तक ये वाला लो नहीं निकलता है, तब तक आप स्ट्रैंगल्स में प्ले कर सकते हो सकता है थोड़े दिनों के लिए ये स्ट्रैंगल्स में वेट करे, और स्ट्रैंगल्स होना इस अच्छी बात है. एंड आई टेल यू द रीजन. डेली में चलते हम, ये मार्केट ने इतनी बड़ी वॉलेटिलिटी दिखाई थी हमको इलेक्शन वाले दिन पे, यहाँ पर ऐसे शार्प गई नीचे और शार्प वी शेप की रिकवरी दी. अब अगर बैंक निफ्टी यहाँ पर कंसोलिडेट करता है
जो कि हम स्ट्रैंगल्स कह रहे हैं, अगर मान लीजिएगा यहाँ पर ऐसे कंसोलिडेट भी कर रही है और उसके बाद मार्केट में एक अपमूव आती है, तो फिर वो अपमूव थोड़ी सी स्ट्रांग हो सकती है। तो इट्स बेटर इफ इट टेक्स अ पॉज एक हफ्ते के लिए, तो इट विल बी रियली गुड फॉर द अपकमिंग वीक्स। ठीक है, तो हम देखते हैं कि कल के लिए तो पॉज लेना अच्छी बात है, बिकॉज फिर हमको जो अपमूव मिलेगा वो बहुत ही स्ट्रांग मिलेगी। तो अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो आप ये मान के चल सकते हो, जब तक ये वाला जोन नहीं निकलता और ये वाला हाई नहीं निकलता है, आप स्ट्रैंगल्स में बने रह सकते हो। ऑफ कोर्स स्पाइक्स इज समथिंग दैट यू विल हैव टू मैनेज। नाउ लेट्स गो टू फिन निफ्टी, बिकॉज कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है। तो फिन निफ्टी में सेम चीज हुई है जैसे बैंक निफ्टी में, बट फिन निफ्टी में अगर आप देखोगे तो एक काइंड ऑफ एन एम पैटर्न बन चुकी है उसका। ये अगर आप नेकलाइन देखोगे तो यहाँ पर ही है ये लेवल, अगेन इट इज बिन टेस्टेड सेवरल टाइम्स दिस लेवल, दैट्स द रीजन मैंने इसको निकाल दिया था। ये मेरा इमीडिएट सपोर्ट था आज एक्चुअली 22,105 या 22,100 के आसपास। तो ये लेवल भी देखिएगा काफी बार टेस्टेड है। सो नाउ इट इज नो मोर अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। तो अगर फ्लैट खुलती है और जैसे ही ब्रेक करती है तो आप ये वाले टारगेट्स के लिए नीचे के ये देख सकते हो। ठीक है, ये फिन निफ्टी की बात है। अब फिन निफ्टी में अगर ये वाला मतलब यहाँ पर अगर ब्रेकडाउन होता है तो फिर मोस्ट लाइकली ये वाले कॉल्स को आप टारगेट कर सकते हो कल के लिए। तो फिन निफ्टी में अगर आप प्ले करना चाहोगे कल के लिए तो यहाँ पर थोड़ा सा और ये लेवल निकल जाता है डिसाइसिवली 22,100 कल फ्लैट ओपन होके अगर ये ब्रेक हो जाता है तो फिर आप ये कॉल्स को टारगेट कर सकते हो। मतलब मैं कहूंगी कि इसको एसएल रख के एक दो स्ट्राइक्स पीछे का रख दीजिएगा, बिकॉज स्पाइक्स आर समथिंग विच इज वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज। मतलब अगर मैं ये करती तो आई वुड हैव प्लेड दैट वे, बट बिकॉज आई डोंट प्ले फिन निफ्टी, सो दैट्स द थिंग। यहाँ पर कोई मेजर रिवर्सल्स अगर आती है तो मैं उसको देखूंगी यहाँ पर प्ले करने के लिए, बट अदरवाइज ये सारे कल के लिए थोड़े से लग रहे हैं मतलब वीक हो गया, बिकॉज ये सपोर्ट वीक हुआ है। अगर यहाँ पर ऐसा होता है कि मार्केट गैप अप खुलती है और फिर यहाँ पर साइडवेज होके फिर ब्रेक करती है इस लेवल को 22,300 के आसपास, तो ही फिर हम अपसाइड के लिए थोड़े से प्लान कर सकते हैं। वो भी बहुत मैसिवली नहीं देखिएगा, बिकॉज यहाँ पर अगेन एक और रेजिस्टेंस है, तो ऐसे केस में ही थोड़े अपसाइड। बट अदरवाइज मान लीजिए अगर फ्लैट ओपन होते हैं और हम इसको ब्रेक कर देते हैं तो मोस्ट लाइकली फिर कॉल सेलिंग का ही इसमें ज्यादा ट्रेड बनेगा। और एट द सेम टाइम ऐसा नहीं कि आपने कॉल सेल करके रखा तो पूरा दिन आप वेट करोगे, जैसे ही आपको प्रॉफिट मिलता है थोड़े बहुत इमीडिएट सपोर्ट लेवल्स पे आता है तो यू शुड ट्राई टू ट्रेल योर प्रॉफिट्स टाइटली। एंड यहाँ पर कैसे जो भी रिवर्सल मिलता है तो बुक योर कॉल्स एंड देन यू कैन ऑल्सो गो शॉर्ट ऑन द पुट्स विद अ स्मॉल एसएल। यहाँ पर जैसे मान लीजिएगा डब्ल्यू दिखा या हैमर पैटर्न दिख गया तो उसके लो का आपने एसएल लगा दिया और फिर आपने पुट शॉर्ट किया तो छोटा एसएल में आपका काम बन सकता है रिवर्सल्स में। तो दैट्स अबाउट इट फॉर निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी। होप यू हैव लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज डू हिट द लाइक बटन। मैं रोज कहती हूँ कि प्लीज डू हिट द लाइक बटन, बट आई डोंट नो कि आप लोग क्यों लाइक बटन देने में इतना सोच विचार करते हो। बट एनीवेज, सी यू टुमारो, बाय बाय, टेक केयर।